Hello class, how are you? I hope you all are fine and doing well in your studies. So today I am your English teacher going to start with the next chapter of your English book, that is chapter number 19, Scott Rates. Okay, so today we are going to start with the reading section of your chapter, that is on page number 113. I would like that you all should open your books where we are going to start with the reading of this chapter. I hope that everyone has opened that. So let's begin up with the reading of Yellow Box. No evil can happen to a good man. These are the words by a great philosopher, Scott Rates. ये जो है ये किसके वर्ड्स थे? ये फिलोसोफर थे. कौन थे? स्कॉट रेट्स उनके वर्ड्स हैं. Scott Rate taught the people to use their reason. They find out what is right, just, true and beautiful. But he was accused by Athenians of leading the young astray. पर वो किससे accused थे? जो एथेनीज थे वो कौन थे? एक young astray थे उनसे. He was condemned to death. Read in the lesson how Scott Rate and the grade of his died. अब हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? स्कॉट रेट जो थे उनके बारे में पढ़ेंगे और उनकी डेथ कैसे हुई थी इस चीज़ से हम रेलिवेंट उनके बारे में पढ़ेंगे. Scott Rates live in Athens about 400 years before the Jesus Christ was born. वो जो जीसस क्राइस्ट से पहले की बात है. ये स्कॉट रेट्स कहाँ पे रहते थे? एथेंस में रहते थे. As a boy he was ugly. अगर वो बॉय की तरफ देखें तो वो कैसे थे? वो बहुत अगली थे. Undersized थे and had a flat nose, bulging eyes. कैसी थी? उनकी फ्लैट नोज थी और bulging eyes थी. His father was a poor stone cutter. उनके जो फादर थे वो एक poor stone cutter थे. So he was always rather shabbily dressed up. तो वो हमेशा से कैसे ड्रेसअप होते थे? shabbily ड्रेसअप होते थे. Like the other boys of his age, he went to the school where the most of the important lessons were the music and gymnastics. और जो चले थे उनके अलावा जो उनकी जो एज के बच्चे थे वो स्कूल जाते थे. बहुत सारे important lessons जैसे कि म्यूजिक और जिम्नास्टिक कराते थे. He also learned some science and mathematics and a little about the stars. वो भी mathematics, little about mathematics और इन सब से related पढ़ते थे. But not nearly so much history and geography as the child learned today. This strange little creature with a short neck, plain face, with thoughtful child. ये जो बच्चा था, ये जो यहाँ पे बॉय का आपको कैरेक्टर बताया है, वो शॉर्ट नेक थी उनकी और ये जो एक उनका प्लेन फेस था, ये इस तरीके के इनका जो थॉटफुल चाइल्ड थे. ही वॉच हिज कंपेनियन ऑल द टाइम. वो अपने कंपेनियन को हमेशा से देखते रहते थे. एंड अलाउ वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस. और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिसको वो नोटिस करने से एस्केप करते थे. Socrates do not have a big house and a fine furniture. He did not seem to want either wealth and beautiful possession. उनके पास कोई बड़ा हाउस या फर्नीचर नहीं था और इवन he do not seem उन्हें जो wealthy और beautiful possession भी नहीं चाहिए था. As grew older, जैसे वो बड़े होते गए, he began to think very little and bodily comfort and प्लेजर. वो धीरे धीरे कैसे सोचने लगे? बॉडली कंफर्ट और प्लेजर पे सोचने लग गए. ही गेव हिज माइंड टू ऑल द नोबल, ऑनरेबल एंड जस्ट. नेक्स्ट है आपका स्कॉट रेट्स वर अराउंड द टाउन ऑन द फूड एंड टॉक टू द पीपल. स्कॉट रेट्स जो थे वो टाउन पे पूरी जगह जाते थे और मतलब पैदल जाते थे और पीपल से बात करते थे. द एथेनियंस बिगेन टू लुक फॉर हिज फेमिलियर फिगर in the street and to say their friends, yes, that is Scott Rate. अब वहाँ पे स्ट्रीट पे या उसके जो दोस्त होते थे वो क्या कहते थे? ये कौन है? स्कॉट रेट्स है. कम along and talk to him. चलो आते हैं और उससे बात करते हैं. After some time, Scott Rate become a famous teacher. कुछ समय बाद जो स्कॉट रेट थे वो कैसे बन गए? वो वहाँ के बहुत एक फेमस टीचर बन गए. He wandered along the road and stood in the marketplaces, talking to anyone cared to greet him.
His listeners were often confused after that had argued with him. अब क्या होता था, जब भी कोई बात करता था और उसके बाद जब उनके जो लिसनर होते थे वो हमेशा से कंफ्यूज हो जाते थे जब भी कोई उनसे आर्ग्यू करता था या फिर उनके जो आंसर उन्हें दिए जाते थे और आंसर हिज क्वेश्चन. Socrates told his countrymen that everyone must learn to think himself. Socrates ने अपने कंट्रीमैन जो उनके साथ के जने मतलब जो कंट्री में उनके जने थे उनको बताया कि हर कोई अपने आप से सीखता है. So that by using his reason he would have a power to see what was right, just true and beautiful, so shape his own conduct. अब उन्हें एक चीज़ जो उन्होंने एक जो सीख ली थी उससे उन्हें क्या पता चला, उन्हें पता चला कि क्या राइट है, क्या ट्रू है, क्या ब्यूटीफुल है और क्या शेप ऑफ कंडक्ट है उसके खुद में. He wanted Athens to be a perfect state. उन्हें क्या चाहिए था, एथनीज को एक परफेक्ट स्टेट चाहिए था. He told everyone, but उन्होंने ये चीज़ सबको बताई, both his pupils and his followers, that this could only happen if every citizen educate his own mind to see what is right and noble. He believed that question and discussing would help them to do this. अब उन्होंने यहाँ पे ये बिलीव करा कि जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, डिस्कस करते हैं तो ये चीज़ उनको हेल्प करेगी. So he was forever talking to him in the open street. तो वो हमेशा से कहाँ पे बात करते थे, ओपन स्ट्रीट में बात करते थे. When Socrates was an old man, जब वो बूढ़े हो गए थे, his fame had spread far and wide. उनका जो फेम था बहुत ज़्यादा, बहुत कई जगहों पे फैल गया. The house of rich man opened its door to him, for the people felt honored to have him as their guest. जो हाँ बड़े बड़े घर थे, हाउस जो रिच मैन थे वो उनको वेलकम करते थे और वो जहाँ पे भी जाते थे और जिन भी पीपल्स के घर पे जाते थे उनके लिए बहुत अच्छी बात होती थी, उनको बहुत अच्छे से ऑनर से वेलकम किया जाता था. By degree, a special group of people gathered around him and followed him whenever he went. और क्या होता था, एक स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल उनके चारों तरफ आता था और जब भी वो कहीं जाते थे उनसे बात करता था. Among them was a young man called Plato. अब वो जो ग्रुप था उनके बीच में एक यंग मैन था जिसका नाम क्या था, प्लाटो. Who treasured every word, जो हर एक वर्ड को क्या करता था, ट्रेजर करता था. which his master uttered and later years become famous as a teacher as Socrates himself. और वो जैसे ही वो वर्ड को अटर करता था उसके बाद वो भी एक ऐसा फेमस टीचर बन गया जैसे कि Socrates. But although many people loved the old man and delight of his wisdom, there was some who do not approve him. जैसे ही जो ओल्ड मैन की विजडम को सब लोग पसंद करते थे पर कुछ ऐसे जने थे जो उसको पसंद नहीं करते थे उसको अप्रूव. Now अब नेक्स्ट क्या था, he thought the man on his mind influenced his conduct more than the god. This seems to be the people of a new and wicked idea. अब ये क्या लगता था पीपल को, एक न्यू और विक्ड आइडिया लगता था. He said that there were higher and noble deed. वो यहाँ पे कहा जाता था कि यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा हायर और नोबल डीड है that make sacrifice to Anthony's and their god of ग्रीक. वो किसके सेक्रीफाइस करते थे, एंथनीज और गॉड ऑफ ग्रीक को. एंड मैनी पीपल थॉट ही वॉज लीडिंग टू द यंग एस्ट्रे. और कहीं कहीं पे कुछ पीपल ये भी थॉट करते थे कि वो क्या है, एक यंग एस्ट्रे है. क्वेश्चनिंग ऑल दे हैड बीन थॉट टू बिलीव द फ्लिटिंग देयर माइंड एंड डाउट. The man who was governing the Athenians summoned the Socrates to appear before them. अब जो मैन था जो गवर्न करना था एथेंस को, उसने क्या समन करा, स्कॉटरेट को समन करा कि वो अपीयर करे, अपीयर बिफोर देम, उनसे पहले अपीयर हो जाए. नाउ आपका नेक्स्ट पैराग्राफ करा है, द मैन हु गवर्न द एथनीज सराउंडेड द स्कॉटलैंड अपीयर बिफोर देम एंड स्टैंड फॉर हिज ट्रायल. हिज फ्रेंड बेग हिम टू एस्केप टू. अब क्या होता है, उसके जो फ्रेंड हैं वो उसको कहते हैं, बैक करते हैं उससे कि वो एस्केप करे और हाइड अंटिल द स्टॉर्म हैज़ ब्लो ओवर. और कहा कि तुम तब तक हाइड हो जब तक ये जो स्टॉर्म में चला नहीं जाता. बट
स्कॉटरेड वॉज नो कावर्ड, स्कॉटरेड बिल्कुल भी कावर्ड नहीं थे, वो डरे हुए नहीं थे। ही न्यू दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, दैट he knew that he had done nothing wrong and that he had only taught what he believed to be। और उन्होंने वो यहाँ पे कभी भी डरे हुए नहीं थे, वो हमेशा से ये कहते थे कि उन्होंने जब कुछ गलत किया ही नहीं है तो वो क्यों डरें, वो उसका सामना करेंगे। He knew that he had done nothing wrong and then had only taught what he believed to be just, true, honorable, and so he went to the court। और वो कहाँ गए, कोर्ट गए। His clothes and shoes were dusty, उनके जो क्लोथ और शूज़ थे वो कैसे थे, डस्टी थे। and travel stain, और जो उनके क्लोथ्स पे उन पे स्टेन लगा हुआ था। but everyone knew that the noble heart beats up by the shabby garments, पर हर किसी को पता था कि जो नोबल हार्ट थे वो किससे बीट अप होते थे, शैबी गारमेंट्स की वजह से वो वहाँ पे मार खाते थे। He made a powerful and dignified speech, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक पावरफुल और एक डिग्निफाइड स्पीच दी। He told the Athenians that they would gain nothing but taking away the last few years of his life। उन्होंने वहाँ कहा कि वो कुछ गेन नहीं करेंगे पर कुछ क्या लेंगे। He told that he will gain nothing, वहाँ पे उन्होंने कहा कि वो कुछ गेन नहीं करेंगे पर अपनी लाइफ के कुछ लास्ट फ्यू ईयर्स लेंगे। but that he was willing to die many deaths of what he believed to be right। The judge and listened to him, अब क्या हुआ, जो जज थे उन्होंने उनकी बात सुनी, question him and condemned him to death। अब यहाँ पे जज ने उनकी बात सुनी, उनसे क्वेश्चन पुट अप करे और उसके बाद भी उन्हें कंडेम कहाँ पे कर दिया, डेथ पे कंडेम कर दिया। द ओल्ड मैन वॉज मेड नो कंप्लेंट, जो ओल्ड मैन थे उन्होंने कोई भी कंप्लेंट नहीं ली। ही लर्न हिज सिक लुकिंग एंड राउंड कावर्ड कोर्ट रूम। Plato and the other peoples were there in the court all the time, तो प्लेटो और दूसरे पीपल्स थे कोर्ट में, वो हमेशा पूरे टाइम वहीं थे। No evil can happen to a good man, कोई भी गलत चीज़, कोई भी गलत evil thing कुछ भी हैपन नहीं हो सकती अच्छे इंसान पे। उन्होंने वहाँ कहा he told them either in life or after the death, लाइफ में रहते हुए भी या फिर डेथ के बाद भी। So be in a good cheer up, I have to go, the hour of my departure has been arrived and we go on our ways, I too died and you too live। तो उन्होंने वहाँ पे स्टेटमेंट दिए। Then the soldiers came and took away him to the prison, अब सोल्जर्स आए और उन्होंने कहाँ लेके गए, उन्हें प्रिजन पे लेके गए। His wife followed with his 3 children, उनकी जो वाइफ थी उन्होंने अपने बच्चों के साथ उनको फॉलो किया। Many of his favorite people were also with him, for a long time they talked to him and he taught them many wise lessons, बहुत से जनों ने उनसे बात करी और उन्होंने उसे बहुत सारे वाइस लेसन जो थे वो बताए, which they treasure in their heart। But all the time his friend knew that Securants would die soon, पर हर किसी को पता था कि जो Securant है वो बहुत जल्दी डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे। They were very sad, वो बहुत सैड थे, वो सब बहुत दुखी थे। For as a Plato wrote, प्लाटो ने वहाँ लिखा, he was like a father of whom we being bereaved and we are about to pass the rest of our life as an orphanage। वो हमारे लिए फादर थे और अगर वो मर जाएंगे तो हम अपनी जो लाइफ है एकदम कैसे जिएंगे, ऑर्फनेज की तरह जिएंगे। After the sun had set behind the 3 loops, the jailer came in and asked the Scotsman to prepare for the death। In Athens, when the people are condemned to die, they were given a cup of poison। जब क्या होता था उस कंट्री में, जब भी कभी किसी पीपल को डेथ के लिए कंडेम करा जाता था तो उसे क्या कप ऑफ दिया जाता था, पॉइजन का कप दिया जाता था। Socrates knew this, Socrates को पता था, and he nodded to the jailer who looked to him sadly, you Socrates, whom I know to be the noblest and a gentle all and best of all who ever came this place, will not be angry with me when I ask you to drink the poison, for other, not I, are guilty cause। Bursting into tears, जब वो मतलब कि वो रोने लगे, he went out, वो बाहर चले गए, returned with a cup of poison, और वो किसके साथ रिटर्न आए, cup of poison के साथ।
May the God prosper my journey from this to the other world, said the Scotland. स्कॉटलैंड ने कहा कि गॉड मेरी जो जर्नी है इस वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में अच्छी लेके जाएं. And lifted the cup to his lip. His lip pupils tried to keep back their tears, but one sobbed aloud this distress to the other. Soon the room is filled with the sound of weeping. और जैसे ही उन्होंने वो कप ऑफ पॉइजन पिया, उसके बाद जितना भी जो रूम था वो किससे भर गया? पॉइजन, जो वीपिंग की, रोने की आवाज़ थी, उससे भर गया. Socrates paused with the unfinished cup. Socrates जो थे वो रुक गए with the unfinished cup. वो उन्होंने पूरा नहीं पिया था. Poison in his hand. उनके हाथ में क्या था? Poison था. What is the strange noise? ये कैसी strange noise है? He asked. उन्होंने वहाँ पूछा. नेक्स्ट पेज पे आइए. आई हैव हर्ड द मैन शुड डाई इन पीस. मैंने सुना है कि मैन को हमेशा से पीस में डाई होना चाहिए. यू मस्ट नॉट क्राई. तुम्हें यहाँ पे नहीं रोना चाहिए. बी साइलेंट एंड हैव पेशेंस. तुम्हें साइलेंट रहना चाहिए और पेशेंस होना चाहिए. आई हैव हर्ड दैट अ मैन कुड डाई इन अ पीस. यू मस्ट नॉट क्राइड. बी साइलेंट एंड हैव पेशेंट. ही लुक्ड अराउंड. उसने चारों तरफ देखा. रिमेंबर समथिंग. उसने कुछ सोचा. क्रीटो. ही विस्पर्ड टू वन ऑफ हिज पीपल. उसने वहाँ पे क्रीटो का नाम लिया जो उसके एक पीपल्स में से एक था. कैन यू डू मी अ फेवर. क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो? आई ओ यू अ कुक टू आस्क. I owe a cook to Asclepius. मैंने एक एस्क्लिपस के लिए कुक ओ करा है. Will you pay the debt. क्या तुम वहाँ पे उसकी डेब्ट जो पे कर दोगे? It shall be paid, said the Christo. क्रिस्टो ने कहा कि हाँ मैं पे हो जाएगी. Is there anything else. क्या इसके अलावा कुछ और ऐसी चीज़ें हैं? He waited. उन्होंने वहाँ वेट करा. But there was no answer. यहाँ पे कोई आंसर नहीं था. For Socrates, the greatest of all the Greek was डेड. और यहाँ पे जो सॉक्रेट्स थे उनकी डेथ हो गई थी. सो क्लास, आज हमने आपके लेक्चर में सबसे पहले आपका जो रीडिंग सेक्शन है चैप्टर का वो कंप्लीट करा है. सेकंड थिंग क्या रहेगी, आपको दे रखे हैं वर्ड बास्केट. क्या दे रखे हैं? वर्ड बास्केट. वो आप खुद से एज इन योर होमवर्क करेंगे. ओके क्लास, अब आप अपने आ जाइए कॉम्प्रीहेंशन पार्ट पे. कॉम्प्रीहेंशन पार्ट में आप सबसे पहले करेंगे हम आपका फिल इन द ब्लैंक्स. आपको वहाँ पे ऊपर वर्ड से रखे और फिलअप से रखे हैं, जिसमें आपका फर्स्ट फिलअप क्या है? डैश लिव इन एथेनीज अबाउट 400 ईयर्स बिफोर द जस्ट जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न. कौन रहते थे वहाँ पे? तो आपका फर्स्ट में आंसर आएगा स्कॉट्रेट्स. कौन रहते थे वहाँ पे? तो आपका फर्स्ट फिलअप में आंसर आएगा स्कॉट्रेट्स. ओके, आपका सेकेंड फिलअप है Socrates went around the town on barefoot and talked to. वो किससे बात करते थे? तो सेकेंड में आपका आएगा people. क्या आएगा? people. थर्ड है when the Socrates was an old man, his fame has spread. उनका जो फेम था वो कैसा स्प्रेड हो गया था? उनका जो फेम है वो फार एंड वाइड स्प्रेड हो गया था. नेक्स्ट आपको दे रखा है द मैन हु वर गवर्निंग द एथनीज सम्ड स्कॉटलैंड टू अपीयर बिफोर देम टू स्टैंड हिज डैश. आपको तो आपके यहाँ पे फोर्थ में क्या आएगा? आपका फोर्थ में आएगा ट्रायल. ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है After the sun has set behind the tree top, the jailer came in and asked Scotland to prepare for dash. किस चीज़ के लिए उन्होंने प्रिपेयर करने को कहा था? तो आपका फिफ्थ में आएगा आपका पॉइजन. और लास्ट है स्कॉटलैंड पॉज्ड विद अनफिनिश्ड कप ऑफ. उन्होंने किस अनफिनिश्ड कप से वो रुक गए थे? तो सिक्स में आपका आएगा पॉइजन. ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है वर्ड पावर. वर्ड पावर में कंप्लीट द फॉलोइंग स्पेलिंग्स आपकी होमवर्क रहेंगी, वो आपको खुद से करनी है. आपको जो स्पेलिंग्स हैं वो आपको आपके चैप्टर में से मिल जाएंगी. नेक्स्ट आपको दे रखा है मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग दे रखा है जिसमें आपका फर्स्ट है डीड. डीड को आप मैच करेंगे एक्शन से. सेकेंड आपको दे रखा है सुमॉन. सुमॉन को आप मैच करेंगे टू कॉल समबडी टू द कोर्ट. ओके, थर्ड है आपको फैमिलियर. फैमिलियर को आप मैच करेंगे नोन से.
फोर्थ है आपका बल्किंग, बल्किंग को आप मैच करेंगे कमिंग आउट ऑफ देयर सॉकेट्स। ओके, नेक्स्ट है आपको अप्रूव, अप्रूव को आप मैच करेंगे एक्सेप्ट से। और आपका लास्ट है फार एंड वाइज, उसको आप मैच करेंगे एवरीवेयर से। ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है फिल इन द ब्लैंक विद द प्रॉपर वर्ड गिवन बिलो। आपको वर्ड्स दे रखे हैं और उसमें आपको जो फिल करने हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप खुद से करेंगे। नाउ क्लास, अब हम आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर पे, दैट इज योर ए पार्ट ऑफ योर कॉम्प्रिहेंशन। ओके, आई होप नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वेयर डिड स्कॉटलैंड लिव, स्कॉटलैंड कहाँ रहते थे और हमें उनकी अपीयरेंस बतानी है। तो स्कॉटलैंड कहाँ रहते थे, वो एथेनीज में रहते थे। ही वॉज अबाउट 100 years बिफोर द जीसस क्राइस्ट बॉर्न। वो कहाँ रहते थे, वो एथेनीज में रहते थे। कब, जो जीसस क्राइस्ट थे, जीसस क्राइस्ट से उनकी बॉर्न से भी पहले वो वहाँ, उनकी बॉर्न से भी पहले उनका जो बॉर्न अप हुआ था वो कैसे थे, ही वॉज अगली। तो आप आंसर 1 में लिख सकते हैं, वो कहाँ रहते थे, इन एथनीज। और वो उनकी जो अपीयरेंस थी वो कैसी थी, ही वॉज अगली, अंडरसाइज्ड, फ्लैट नोज। वो बहुत अगली थे, अंडरसाइज थे, फ्लैट नोज थे और उनकी क्या थी, बल्गिंग आइज। राइट, तो आप इसको अपने वर्ड्स में इन डिटेल लिख सकते हैं। सेकेंड आपको कह रहा है, व्हाट वाज द स्कॉरेंट्स एम इन टॉकिंग टू द पीपल। स्कॉरेंट का क्या एम होता था जब वो पीपल से जाके बात करता था, वो जनों से जाके बात करता था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हिज एम ओके, तो उनका एम सबसे बड़ा यही रहता था ना कि जो उनकी सिटी है, सिटी में हर कोई एजुकेटेड हो, हर कोई पढ़ना लिखना जानता हो। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्कॉरेंट एम इन टॉकिंग टू द पीपल वाज दैट ही वांटेड एवरी सिटीजन टू एजुकेट हिज ओन माइंड टू सी व्हाट इज राइट एंड नोबल। कि हर कोई उनकी सिटी में एजुकेट हो और वो समझ सके क्या सही है क्या गलत है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन 3 दे रखा है, हाउ अकॉर्डिंग टू द स्कॉरेंट शुड अ मैन यूज हिज रीजन। अब आपको ये खुद लिखना है, उसमें पूछा गया है सॉक्रेट्स के अकॉर्डिंग जो मैन है, मैन अपने रीजन्स को कैसे यूज कर सकता है। तो आंसर 3 आपका होमवर्क रहेगा, ये आप खुद से लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हु वॉज सॉक्रेट्स, सॉक्रेट्स कौन थे, एंड वॉट वर हिज टीचिंग, और वो क्या टीच करते थे। हम इस पे लिखेंगे सॉक्रेट वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर। वो कौन थे, वो एक ग्रेट फिलोसोफर थे। ही टॉट पीपल टू यूज देयर रीजन्स। वो किसको पढ़ाते थे, वो पीपल को पढ़ाते थे कि वो अपने रीजन्स को, अपने जो रीजन है उन्हें यूज कर सके। दे शुड फाइंड आउट वॉट इज राइट टू एंड ब्यूटीफुल, और वो समझ सकें क्या सच है, क्या ब्यूटीफुल है, क्या सही है। ओके, 5th क्वेश्चन आपको दे रखा है, What was Socrates accused of? जो Socrates किस चीज़ से accused थे और who summoned him to appear before the stand of trial। तो आप आंसर 5th में लिखेंगे, No, Socrates was not an accused। जो Socrates है वो बिल्कुल भी accused नहीं थे। A man who was governing the Athens summoned, जो मैन जो एथनीस को गवर्न कर रहे थे, उन्होंने क्या करा था, द मैन हु वॉज गवर्निंग द एथनीस समॉन्ड द स्कॉटलैंड टू अपीयर देम बिफोर द स्टैंड टू हिज ट्रायल। ओके, या ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट डिड हिज फ्रेंड एडवाइस हिम। यहाँ पे पूछा गया है उनके जो फ्रेंड थे उन्हें क्या एडवाइस दी थी, एंड व्हाट वाज हिज रिएक्शन टू द डेथ सेंटेंस, और
यहाँ पे पूछा गया है कि आज उनके जो फ्रेंड है उन्होंने उन्हें क्या एडवाइस दी थी, एंड वाई डिड ही नॉट लिसन टू द फ्रेंड एडवाइस, और उन्होंने उनकी फ्रेंड की एडवाइस क्यों नहीं सुनी थी। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, ये आप खुद से लिख सकते हैं, आपको ये आपकी बुक में मिल जाएंगे। ओके तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है वाई वॉज स्कॉटलैंड कमेंडेड टू डेथ, क्यों उन्हें कमांडेड दी गई कि वो उनकी जो उनको डेथ दी जाएगी, और सबका रिएक्शन क्या था। ओके तो आप ये खुद से करेंगे, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं वो क्या है, व्हाट डिड द जेलर से टू स्कॉटलैंड, जेलर था, जेलर ने स्कॉटलैंड को क्या कहा था। तो हम आंसर नंबर 8 देखेंगे, द जेलर से टू स्कॉटलैंड आई नो यू टू बी द नोबलेस्ट, जेलर ने वहाँ पे कहा था कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम बहुत नोबलेस्ट एंड जेंटल हो, बेस्ट ऑफ ऑल हु एवर केम टू दिस प्लेस, जो भी तुम सब में से इन सब में से सबसे अच्छे हो, जो तुम सब में इन सब में से बेस्ट हो, विल नॉट बी एंग्री, तुम बिल्कुल भी एंग्री नहीं हो, I know that you to be the noblest and a gentle and best of all who ever came to this place will not be angry with me when I ask you to drink the poison, और तुम मेरे से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हो जब मैंने तुम्हें कहा कि तुम ये जो पॉइजन है इसे पी लो। For the others, दूसरों के लिए, and not I, मेरे लिए, are the guilty cause, तुम कैसे हो, not I, तुम कैसे हो, एक guilty cause हो। ओके यहाँ पे आपका 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई डिड स्कॉटलैंड ऑफ्टन टॉक टू द पीपल ऑफ एथनीज, जो स्कॉटलैंड है वो क्यों बात करते थे, पीपल जो एथनीज के पीपल उनसे बात क्यों करते थे, क्यों, क्योंकि वो चाहते थे कि वो जो एजुकेट हों, वो अपनी जो अपने खुद की परफेक्ट स्टेबल रहें, वो उनका जो स्टेट है वो अच्छे से रहे, एजुकेट रहे, और वो सच्चाई नोबल से काम करे। ओके और लास्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड स्कॉटलैंड व्हाट डिड स्कॉटलैंड वांट एथनीज टू बी, स्कॉटलैंड एथनीज को क्या चाहते थे, तो वो एथनीज को चाहते थे कि वो एक परफेक्ट स्टेट रहे। व्हाट डिड ही आस्क एथनीज टू डू टू एडवाइस इन द एंड, और उन्होंने एथनीज से क्या कहा था कि वो एडवाइस का क्या कहा था उनसे एंड में। तो हम यहाँ पे आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। स्कॉटलैंड वांटेड एथनीज टू बी अ परफेक्ट स्टेट, वो चाहते थे कि वो क्या बने, एथनीज एक परफेक्ट स्टेट बने। ही टोल्ड एवरीवन बोथ हिज पीपल एंड हिज फॉलोअर्स दैट दिस कुड ओनली हैपन इफ द सिटीजन एजुकेट हिज ओन माइंड, ये कब होगा, जब सिटीजन अपने खुद के माइंड को एजुकेट करेंगे टू सी व्हाट इज राइट एंड नोबल, की वो देखें कि क्या सही है क्या नोबल है। ओके क्लास, तो यहाँ पे आज हमने आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी डिस्कस करे हैं। अब आपका होमवर्क रहेगा कि आप अपने क्वेश्चन आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स लिखेंगे। जो भी हमने आपको क्वेश्चन आंसर्स होमवर्क के लिए दिए हैं, आपको उनके आंसर्स आपकी बुक्स में मिल जाएंगे। यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ और यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। So here we are going to end up with this lecture. Thank you class. See you in the next lecture.